heard that if a black cat crosses your path, something bad will happen? क्या आपने सुना है कभी कि काली बिल्ली रास्ता काट ले तो कुछ बुरा होता है? Spilling salt is unlucky for a person. नमक गिराना किसी इंसान के लिए बुरा साबित होता है. We all have heard such things at least once in our lifetime. So what are these? These are nothing but superstitions. हम सब ने कभी ना कभी ये बातें सुनी या देखी है. ये सारी चीज़ें कुछ नहीं, बस अंधविश्वास हैं, जिसे हम सुपरस्टिशन कहते हैं, और आज भी बहुत से लोग इनमें यकीन रखते हैं. तो पहले देखते हैं कि सुपरस्टिशन है क्या. Superstition is any belief or practice based upon one's trust in luck or other irrational, unscientific or supernatural forces. जब कोई इंसान किस्मत पर, रहस्यमय ताकत पर या किसी ऐसी चीज़ पर भरोसा करता है जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, तो उसे सुपरस्टिशन या अंधविश्वास कहते हैं. Now you might be wondering, why are we discussing about superstition? It is because the chapter that we are going to learn today talks about blind faith of the people and also about the greediness of man. आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है An Astrologer's Tale. फिर आप सोच रहे होंगे, हम सुपरस्टिशंस के बारे में इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि ये चैप्टर हमें लोगों के अंधविश्वास के बारे में और इंसान अपने मतलब के लिए कितना लालची हो सकता है इस बारे में बताता है. But before we start, let us know something about the author of this story. R.K. Narayan was one of the finest Indian writers of his generation. He wrote many novels, short stories, travelogues, and also has a collection of non-fictions to his credit. Waiting for the Mahatma, The English Teacher, The Guide, The Man-Eater of Malgudi, The Vendor of Sweets are some of his books. आर के नारायण इंडिया के जाने माने राइटर्स में से एक हैं. उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं. वेटिंग फॉर द महात्मा, द इंग्लिश टीचर, द गाइड, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, द वेंडर ऑफ स्वीट, उनकी लिखी गई कुछ बुक्स. द गाइड won him the Sahitya Academy Award in 1961, which is the most desired literary award in India. He is well known for his book The Malgudi Days, which is a collection of short stories written by him. An Astrologer's Day is the first chapter of the world-famous collection The Malgudi Days. The Malgudi Days was later telecast on television. It became an Indian television series that was started in 1986 and was filmed in both English and Hindi. R.K. Narayan को अपनी बुक द गाइड के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था, जो हर लेखक की चाहत होती है. उन्हें उनकी बुक मालगुडी डेज के लिए भी जाना जाता है, और ये जो चैप्टर है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, वो उसी बुक का पहला चैप्टर है. और बाद में मालगुडी डेज की टेलीविज़न सीरीज़ भी बनी थी, जो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेजेस में बनी थी. Let's start the chapter by first understanding who an astrologer is. An astrologer is a person who predicts the future by understanding the position of the planets, sun, moon in the birth chart of an individual. Astrologer, जिसे हम ज्योतिष कहते हैं, ये वो इंसान है जो दावा करता है कि वो हमें हमारा भविष्य बता सकता है ग्रहों और तारों की दिशा को देखकर. ये जो कहानी है वो एक ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर की है जो लोगों से दावा करता था कि वो उन्हें उनके भविष्य के बारे में बता सकता है. चलिए शुरू करते हैं. Astrologer's Day. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Pamyara writing. His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp, abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers, but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. दोपहर का वक्त हुआ. उस ज्योतिष ने
अपने बैग से अपने व्यवसाय यानी अपने पेशे से जुड़ी सारी चीज़ें निकालना शुरू की। उन चीज़ों में 1 डज़न काउरी शेल थे यानी 12 काउरी शेल। काउरी एक सी क्रीचर है जिसके शेल्स उसके पास थे। एक स्क्वायर शेप का कपड़ा था जिसपे कुछ ऐसी चीज़ें बनी थी जो बहुत मुश्किल से समझ आ रही थी। वो काफ़ी रहस्यमयी थी। एक नोटबुक भी थी और उसके पास पामियारा राइटिंग थी। पामियारा वो ट्रीज होती हैं जिनकी ब्रांचेज यानी टहनियाँ नहीं होती, जैसे कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री की बस एक ट्रंक होती है और लीव्स, कोई ब्रांचेज नहीं होती। इन ट्रीज की लीव्स और ट्रंक का इस्तेमाल पहले ज़माने में लिखने के लिए किया जाता था। ज्योतिष के पास पामियारा पर लिखी हुई चीज़ें थी। ज्योतिष का जो फोरहेड यानी माथा था उस पे चमकदार पवित्र राख लगी हुई थी और सिंदूर भी लगा हुआ था। स्प्लेंडेंट का मतलब होता है चमकदार, सेक्रेड ऐश का मतलब होता है पवित्र राख और वेमिलियन का मतलब होता है सिंदूर। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके कस्टमर्स को काफ़ी रहस्यमय लगती थी। वो उसे कोई जादुई चमक समझते थे, पर आर के नारायण कहते हैं ऐसा कुछ नहीं था। ये चमक कस्टमर्स को काफ़ी देर से देखने और ढूंढने की वजह से थी। Power of his eyes was considerably enhanced by their position placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. Even a half-wit's eye would sparkle in such a setting. To crown the effect, he wound a saffron-colored turban around his head. This color scheme never failed. उसकी आंखों की चमक एनहांस हो रही थी, मतलब बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसके माथे पर सिंदूर लगा था और पवित्र राख लगी थी और उसकी घनी काली मूछें थी, जिसकी वजह से लोगों की नज़र उसकी आंखों पर जाती थी। आर के नारायण कहते हैं ऐसे में तो कोई बेवकूफ़ की आंखें भी चमकेंगी ऐसे सेटिंग में। उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है हाफ विट्स, जिसका मतलब होता है बेवकूफ़, फुलिश। ज्योतिष ने सैफरन यानी भगवा ऑरेंज कलर की पगड़ी भी पहनी थी और ये कलर स्कीम कभी फेल नहीं होती। लोग बड़े जल्दी ही ऐसे लोगों पर यकीन कर लेते हैं। People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stalk. He sat under the boughs of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. It was a remarkable place in many ways. लोग उसकी तरफ ऐसे आकर्षित होते थे जैसे मधुमक्खी कॉस्मोस और डालिया पर अट्रैक्ट होती हैं। कॉस्मोस और डालिया दो प्लांट्स हैं जिनके जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। ये ज्योतिष एक इमली के पेड़ के नीचे बैठता था जो उस रास्ते के बगल में था जो टाउन हॉल पार्क की तरफ जाता था। जो लोग पार्क की तरफ जाते थे वो इस ज्योतिष को देखकर इसकी तरफ आकर्षित होते थे। ये जो जगह थी जिस जगह पे ज्योतिष बैठता था वो काफ़ी असाधारण, लाजवाब यानी रिमार्केबल थी। इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट पिक्चर में कि काउरी शेल्स कैसे होते हैं। सेकेंड पिक्चर है वो है पामियारा पाम की। जैसा कि मैंने कहा था इनकी ब्रांचेस नहीं होती हैं, सिर्फ एक ट्रंक होती है। पिक्चर में आप देख सकते हैं इनकी ब्रांचेस नहीं है। थर्ड पिक्चर पामियारा राइटिंग की है। पामियारा ट्रीज की जो लीव्स और ट्रंक की थी उन्हें ड्राई करके उन पे लिखा जाता था। पामियारा राइटिंग्स कहते हैं। फोर्थ पिक्चर है कॉस्मोस की और फिफ्थ है डालिया। दोनों ही फ्लावर्स है जिनकी तरफ बीज बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। जिस तरह से मक्खियाँ इन दो फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होती थी उसी तरह से कस्टमर्स उस ज्योतिष की तरफ आकर्षित होते थे। Before moving ahead, let's see some new words along with their meanings and we will also see how to frame sentences using them. तो यहाँ कुछ नए वर्ड्स हैं जो हमें इस स्टोरी में अब तक देखने मिले। पहला वर्ड है obscure, which means unclear and difficult to understand or see. कोई चीज़ अगर समझने में या देखने में मुश्किल है तो उसके लिए हम obscure वर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो सेंटेंस है वो है The meaning of the passage is obscure. मतलब इस पैसेज का जो मीनिंग है वो समझने में मुश्किल है। The second one is mystic, which means
something or someone who can connect with God or other supernatural powers. अगर हम किसी चीज़ को या किसी इंसान को मिस्टिक कहते हैं तो उस इंसान के पास कुछ पावर्स है जिससे वो गॉड से या और किसी रहस्यमय कनेक्ट कर सकता है। यहाँ पे मैंने जो सेंटेंस दिया है वो है ही इज़ अ मिस्टिक। अगर हम किसी को मिस्टिक कहते हैं तो मतलब वो गॉड से कनेक्ट कर सकता है या दूसरी सुपरनैचुरल पावर्स से कनेक्ट कर सकता है। दूसरा सेंटेंस है कबीर वॉज कंसिडर्ड एज अ मिस्टिक पोएट। संत कबीर जो थे, जब हम उनकी पोएम्स पढ़ते हैं तो उनको पढ़ के ऐसा लगता है कि वो डायरेक्टली गॉड से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हम ये वर्ड मिस्टिक यूज कर सकते हैं। सो कबीर वॉज कंसिडर्ड एज अ मिस्टिक पोएट। तीसरा वर्ड है रेस्प्लेंडेंट विच मीन्स ब्राइट, अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव। तो अगर मैं कहती हूँ रीमा लुक्ड रेस्प्लेंडेंट इन हर ग्रीन गाउन, मतलब रीमा अपने ग्रीन गाउन में बहुत अट्रैक्टिव या इम्प्रेसिव लग रही थी। तो ये वर्ड रेस्प्लेंडेंट आप यूज कर सकते हैं किसी को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। चौथा वर्ड है सेक्रेड विच मीन्स कंसिडर्ड टू बी होली एंड इज ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट। कोई चीज़ जो पवित्र मानी जाए और उसे सम्मान के साथ ट्रीट किया जाए तो उसे कहते हैं सेक्रेड। और सेंटेंस है बाइबल, गीता एंड कुरान आर कंसिडर्ड एज सेक्रेड बुक्स, मतलब बाइबल, गीता और कुरान को पवित्र किताब माना जाता है। फिफ्थ वन इज फ्लैंक्ड विच मीन्स टू बी एट द साइड ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज के या किसी इंसान के साइड में होना। द प्रेसिडेंट वॉज फ्लैंक्ड बाय बॉडीगार्ड्स, मतलब प्रेसिडेंट के साइड में उनके बॉडीगार्ड्स थे। सिक्स्थ वन इज बाउ विच मीन्स मेन ब्रांच ऑफ अ ट्री, जो पेड़ की मेन टहनी होती है वो। द बर्ड सेटल्ड ऑन द टॉप मोस्ट बाउ, मतलब वो बर्ड जाके सबसे ऊंची वाली टहनी पर बैठी थी। द सेवेंथ वन इज हाफ विट। मैंने पैसेज में भी आपको बताया था कि हाफ विट का मतलब होता है फुलिश, बेवकूफ। टुडे आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद अ हाफ विट पर्सन। आज मेरी बहस हो गई एक बेवकूफ इंसान के साथ। तो ये कुछ न्यू वर्ड्स थे जो हमें अब तक पैसेज में देखने मिले। A surging crowd was always moving up and down this narrow road from morning till night. A variety of trades and occupations was represented all along its way. Medicine sellers, sellers of stolen hardware and junk, magicians, and above all, an auctioneer of cheap cloth who created enough din all day to attract the whole town. जैसे कि मैंने कहा कि वो एस्ट्रोलॉजर जहाँ बैठता था वो जगह काफ़ी ही लाजवाब, काफ़ी रिमार्केबल थी। तो वो इसलिए था क्योंकि उस जगह पर सुबह से शाम तक लोगों का आना जाना लगा रहता था और वहाँ बहुत सारी चीज़ों का कारोबार होता था। वहाँ कोई दवाइयाँ, कोई चुराई हुई चीज़ें, कुछ ना कुछ बेच रहा होता था। वहाँ कुछ जादूगर भी थे जो लोगों को जादू दिखाया करते थे। पर वहाँ एक इंसान था जो इतनी आवाज करता था जिससे सारे शहर का ध्यान उसकी तरफ आ जाता था और वो इंसान सस्ते कपड़ों की नीलामी किया करता था। यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है दिन, जिसका मतलब होता है नॉइज, आवाज। To him in vociferousness came a vendor of fried groundnut who gave his ware a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day and on the next day Delhi almond and on the third Raja delicacy and so on and so forth. And people flocked to him. A considerable portion of this crowd dallied before the astrologer too. The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby. उस कपड़ों की नीलामी करने वाले के साइड में ही बहुत शोर करता हुआ एक मूंगफली वाला था और हर दिन वो अपने सामान को एक नया नाम दिया करता था। कभी बॉम्बे आइसक्रीम, कभी दिल्ली आमंड, तो कभी राजाज डेलिकेसी। और बहुत लोग ये सुनकर उसकी तरफ जाने लगते थे। फ्लॉक्ड का मतलब होता है जमा होना,
या किसी की तरफ बढ़ना। जो लोग उस मूंगफली वाले के पास जाते थे, उनमें से बहुत लोग इस ज्योतिष के पास भी अपना समय बर्बाद करने के लिए आ जाया करते थे। डैलीड का मतलब होता है वक्त बर्बाद करना। जो मूंगफली वाला था, वो अपनी मूंगफली के हीप पे यानी ढेर पे फ्लेयर लगाया करता था। फ्लेयर एक डिवाइस होता है जिससे जलाने पर अचानक से रोशनी निकलती है। उस फ्लेयर की रोशनी से इस एस्ट्रोलॉजर का भी बिजनेस चलता था। Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. The place was lit up by shop lights. One or two had hissing gas lights, some had naked flares stuck on poles, some were lit up by old cycle lamps, and one or two, like the astrologer, managed without lights of their own. It was a bewildering crisscross of light rays and moving shadows. उस जगह की रौनक एन्चैंटमेंट इस वजह से थी कि वहां पे लोगों के पास म्युनिसिपल लाइटिंग नहीं होती थी, कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी। तो जो दुकानदार होते थे उनको अपनी दुकानों के लिए खुद ही लाइट का इंतजाम करना पड़ता था। तो कुछ लोग गैस लाइट्स यूज करते थे, कुछ फ्लेयर्स और कुछ ओल्ड साइकिल लैंप्स, और कुछ लोग इस एस्ट्रोलॉजर के जैसे भी थे जिनके पास कोई लाइट ही नहीं होती थी। वो दूसरों की दुकानों से आने वाली रोशनी का इस्तेमाल करते थे, जो काफी कंफ्यूजिंग थी। This suited the astrologer very well for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life, and he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. He was a much stranger to the stars as were his innocent customers. Yet he said things which pleased and astonished everyone. That was more a matter of study, practice, and shrewd guesswork. All the same, it was as much an honest man's labor as any other, as he deserved the wages he carried home at the end of a day. और ये जो रोशनी थी जो दुकानों से आती थी, वो एस्ट्रोलॉजर के लिए बिल्कुल सही थी, उसके बिजनेस के लिए बिल्कुल सही थी। और आर के नारायण कहते हैं कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एस्ट्रोलॉजर बनेगा, क्योंकि अगले पल में उसके साथ क्या हो उसे ये तक नहीं पता था, तो दूसरों के बारे में उसे क्या पता होता। वो तारों से, ग्रहों से उतना ही अनजान था जितना उसके कस्टमर्स। फिर भी उसका ये बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि वो लोगों से ऐसी बातें कहता था जो उनको सरप्राइज कर देती थी। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है एस्टोनिश्ड, जिसका मतलब है ग्रेटली सरप्राइज्ड। और वो इसलिए था क्योंकि वो काफी वक्त से इस बिजनेस में था, उसकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी थी, और वो गेस वर्क करने में भी काफी अच्छा था, अनुमान लगाने में काफी अच्छा था। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है श्रूड, जिसका मतलब होता है गुड एट जजिंग पीपल, किसी को जज करने में अच्छा होना, अनुमान लगाने में अच्छा होना। तो इसीलिए लेखक कहते हैं, आर के नारायण कहते हैं कि वो जो भी कमाता था कहीं ना कहीं वो उसे डिजर्व करता है। आगे बढ़ने से पहले कुछ न्यू वर्ड्स और इनकी मीनिंग्स जान लेते हैं। फर्स्ट वन इज vociferous, मीन्स बीइंग लाउड एंड नॉइजी, जोरदार आवाजें करना। यहाँ पे जो सेंटेंस है वो है माय फ्रेंड्स हैड अ vociferous argument, मेरे दोस्तों के बीच बहुत जोरों शोरों से बहस हुई। Second one is astonished, means greatly surprised. The sentence is Seema was astonished to see Rima after so many years. मतलब जब सीमा ने रीमा को इतने सालों बाद देखी तो वो सरप्राइज हो गई। Third one is dallied, which means waste time, जाया करना। Mohan dallied with his friends when he was young. मोहन ने बहुत वक्त जाया किया जब वो यंग था अपने दोस्तों के साथ। वन इज एन्चैंटमेंट, कोई चीज जो बहुत ज्यादा आकर्षित है, बहुत अट्रैक्टिव है। द सेंटेंस हियर इज म्यूजियम वाज फुल ऑफ एन्चैंटमेंट्स, मतलब उस म्यूजियम में बहुत सी ऐसी चीजें थी जो बहुत अट्रैक्टिव थी, बहुत जादुई थी देखने में। लास्ट वन इज bewildering, which means
कंफ्यूजिंग एंड इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, कोई चीज़ जो बहुत कंफ्यूजिंग हो और समझने में बहुत मुश्किल हो। अंडरस्टैंडिंग समवन हु स्पीक्स अ डिफरेंट लैंग्वेज इज bewildering। ऐसे को समझना जो कोई ऐसी लैंग्वेज बोल रहा हो जो हमें नहीं समझती है, वो bewildering है यानी कंफ्यूजिंग है। कुछ न्यू वर्ड्स थे इस पैसेज में जो हमने अभी रीड किया। उस ज्योतिष को अपना गांव छोड़ना पड़ा बिना कुछ सोचे समझे। अगर वो अभी भी अपने गांव में होता तो वो वही काम करता जो उसके पूर्वज किया करते थे। वो जमीन को खेती के लिए तैयार करता। यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है टिलिंग, जिसका मतलब होता है जमीन को खेती के लिए तैयार करना। शादी कर लेता और कॉर्नफील्ड यानी मकई के खेत में और अपने एंसेस्ट्रल होम यानी पुश्तैनी घर में या पूर्वजों के द्वारा बनाए गए घर में सड़ रहा होता। पर ऐसा नहीं होना था। उसे अपना गांव बिना किसी को बताए छोड़ना पड़ा और उसे तब तक सुकून नहीं मिला, तब तक आराम नहीं मिला जब तक वो 100 मील दूर नहीं आ गया अपने गांव से। और किसी भी विलेजर के लिए, किसी भी गांव में रहने वाले के लिए ये बहुत बड़ी बात है अपना गांव छोड़ना। He had a working analysis of mankind's trouble, marriage, money, and the tangles of human ties. Long practice had sharpened his perception. Within 5 minutes, he understood what was wrong. उसे अच्छा खासा अंदाज़ा हो गया था इंसानों की प्रॉब्लम्स का, चाहे वो शादी हो, पैसा हो या इंसानी रिश्तों की प्रॉब्लम हो। और बहुत लंबी प्रैक्टिस में, क्योंकि वो इस फील्ड में बहुत टाइम से था, इस प्रोफेशन में बहुत टाइम से था, उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई थी। तो अब वो और बेहतर तरीके से सुन सकता था, देख सकता था और समझ सकता था लोगों की प्रॉब्लम्स को। सिर्फ 5 मिनट में वो समझ जाता था कि किसकी क्या प्रॉब्लम है। अभी तक स्टोरी में ये नहीं बताया गया है कि उसने अपने गाँव को क्यों छोड़ा। आगे जाके हम स्टोरी में देखेंगे कि उसने अपने गाँव को क्यों छोड़ा। आज हमने जो कुछ भी पढ़ा है ये क्वेश्चंस उससे ही रिलेटेड है, तो आप कोशिश कीजिए इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने की, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम पहले इन क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे और फिर आगे की स्टोरी देखेंगे।